صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ حضرات گرامی وقار، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب بتانے والے نبی پر۔ اے لوگو، تم بھی خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ ایک وقت تھا کہ اسی مسجد میں آپ نماز کے لیے آتے تھے۔ بہت سارے بھائی ایسے ہوں گے جنہوں نے اس مسجد کو خستہ حالت میں دیکھا ہوگا۔ یہ دیواریں اس طرح نہیں، یہ لائٹ، یہ کمکمے، یہ انتظامات ایسے نہیں تھے۔ آپ سب کے تعاون سے اس کو بہتر بنایا گیا۔ آپ نے دھیرے دھیرے اپنی محنت کی گاڑی کمائی اس مسجد میں لگائی، تو خوبصورت مسجد بننے کے ساتھ ساتھ بہترین انتظامات بھی ہو گئے، چٹائیاں بہتر ہو گئیں، سارے سسٹم بہتر ہو گئے۔ ایک دور تھا کہ جس دور میں شروعات میں آیا تھا، حالات ایسے تھے کہ جمعہ کے چندے میں جو ٹوکری رومال لے کر لوگ گھومتے تھے، 400، 450 یا 500 روپے کا چندہ آتا تھا۔ حد سے حد کبھی بہتر آتا تو 600 روپے، 1000 کو پار نہ کر سکتا تھا۔ اور حالات بدلے، دھیرے دھیرے آپ لوگوں نے تعاون بڑھانا شروع کیا۔ جو لوگ 5 روپے دیتے تھے 10 دینے لگے، جو 10 دیتے تھے 20 دینے لگے۔ پھر ایسے بھی کچھ اللہ کے بندے نکل کر آئے، سخی لوگ آئے، جنہوں نے ہزاروں روپے، لاکھوں روپے بھی اس مسجد میں دیے اور بہترین انتظامات ہو گئے۔ کون سوچ سکتا تھا اب سے 8 سال پہلے کہ اس مسجد میں 2 مکان خرید لیے جائیں گے۔ حالت ایسی تھی کہ وضو خانے کی مرمت کرانے کے لیے پیسے نہ ہوتے تھے۔ حالات ایسے تھے کہ مسجد میں ڈھنگ کی چٹائی بچھانے کے لیے پیسے نہ ہوتے تھے۔ 2-4 لوگ گنتی کے تھے تو وہ والی بات تھی کہ اکیلا چنا کب تک بھاڑ بھونے گا۔ 2-4 لوگ دینے والے تھے بھی تو بیچارے کب تک دیتے۔ کبھی کوئی کمی تھی، کبھی کوئی کمی تھی، لیکن جب سب لوگوں نے کاندھے سے کاندھا ملایا، جب سب لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، تو یہ ساری دیواروں کو بہترین کر دیا گیا، ان چٹائیوں کو، ان وضو خانوں کو بہترین کر دیا گیا، اور مسجد کی تعمیری سلسلہ بھی جاری و ساری رہا۔ ساتھ ہی ساتھ ایک نہیں 2 مکان آپ نے مسجد میں خرید لیے۔ میرا اندازہ ہے تقریباً 1 سال کی جو آمدنی مسجد کی ہے، بالکل نارمل طریقے سے اگر حساب لگایا جائے تو تقریباً 7 سے 8 لاکھ روپے موجودہ وقت میں مسجد کی 1 سال کی آمدنی ہے۔ کتنی؟ 1 سال کی 7 سے 8 لاکھ روپے کی تقریباً آمدنی ہے، اور تبھی یہ سب کچھ ممکن ہو رہا ہے کہ آپ بہترین جلسے بھی کرا رہے ہیں، بہترین آپ کا تعلیمی سلسلہ مسجد سے چل رہا ہے، بہترین آپ انتظامات دیکھ رہے ہیں۔ یہ آپ سب کے تعاون سے ہوا ہے۔ لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگ بخیل ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں دے رہے تو ہم بچ گئے۔ آپ یہ نہ سمجھنا میں آپ کو تانا کشی کر رہا ہوں یا شکایت کر رہا ہوں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھو وہ وقت تھا کہ 2-4 لوگ مسجد میں دیتے تھے، آج وقت ہے کہ سینکڑوں لوگ مسجد میں چندہ دے رہے ہیں۔
देखो अल्लाह जब किसी कौम से राजी हो जाता है तो अपनी बारगाह में उस कौम को लगा देता है, अपने रास्ते में उस कौम को लगा देता है। जब किसी कौम से अल्लाह राजी हो जाता है तो उस कौम के नौजवान बेदार हो जाते हैं और अल्लाह उनको समझ अता फरमा देता है और उनको ये तौफीक देता है कि वो कौम सिर्फ अपनी भलाई के लिए काम नहीं करती बल्कि तमाम अल्लाह की मखलूक की भलाई के लिए काम करने लग जाती है। और यही वजह है कि आज हम सब मिलकर के भलाई का काम खूब जोरों शोर से कर रहे हैं। सिर्फ मस्जिद का तामीरी काम नहीं चल रहा है, आप नहीं जानते, हम जानते हैं क्योंकि हम यहां रहते हैं, बल्कि पूरे इलाके में अब इस मस्जिद का चर्चा है। गिरदो नवाह में दूर दूर तक बहुत सारी कॉलोनियों में इस मस्जिद की पहचान अलग हो गई है और इसलिए हो गई है कि यहाँ ना जाने महीने में कितने लोग आते हैं, कहते हैं हजरत मैं अपने गांव जाना चाहता हूं, किराया नहीं है। हम किसी एक भाई से बोलते हैं तो किराया मिल जाता है। कोई आता है हजरत इमाम साहब हमारे घर में खाने को नहीं है। मैं आपको जता नहीं रहा हूं कि यहां से मदद की जा रही है, मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी इस कॉलोनी में अब लोगों के जिगर कितने बढ़ गए हैं, कितने लोग सखी हो गए हैं। हमें ज्यादातर चंदा मस्जिद में हम करते तो हैं, लेकिन जो गरीब आ जाते हैं, जो बेचारे बेसहारा आ जाते हैं, महीने में 50 लोग मस्जिद के दरवाजे पर आते हैं। आप खुद अपनी आंखों से देखते होंगे, अब से 2-4 साल पहले आपकी मस्जिद के दरवाजे पर एक भी फकीर खड़ा नहीं होता था। आज 20 लोग जुमा की नमाज के बाद आपसे चंदा मांगते हुए बाहर नजर आते हैं। कोई कहता है खाने का गल्ला नहीं, कोई कहता है पहनने का कपड़ा नहीं। क्यों आते हैं? क्योंकि हमारी कॉलोनी में अब सखी लोग रहने लगे हैं और वो लोगों की मदद कर रहे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब से 2-4 साल पहले आपने मस्जिद के दरवाजे पर किसी को मदद मांगते यहां देखा था? अब 20 लोग लाइन में खड़े हैं। क्यों? क्योंकि यहां लोग अब लोगों की मदद करने लग गए हैं। ये कब मुमकिन हुआ है? जब आपने अपने जिगर को बढ़ा लिया है, जब आप सखी बन गए हैं, जब आपका हाथ देने वाला बन गया है तो लेने वाले हाथ आपके दरवाजे तक पहुंच रहे हैं। इसलिए क्या अल्लाह ने तुम्हारे जरिए अपनी मखलूक की मदद तुमसे करा रहा है। असल में मदद अल्लाह ही की है, लेकिन तुम्हारे सबब से अब लोगों की मदद हो रही है। मैं कहना ये चाहता हूं, अभी बहुत सारे लोग हैं जो बखालत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कंजूसी कर रहे हैं, लेकिन कभी अपने दिल में ये बात ना लेकर के आना। मुंशी जी अभी रुक जाओ, तकरीर पहले होने दो, आप असल मुद्दे से लोगों को ना हटाओ, यहीं पे बैठो अपने कार्ड लेके, वक्त मिलेगा आपको। तवज्जो है ना आप हजरात की? कहो सुभान अल्लाह। असल में मैं कहना ये चाहता हूं, अब सैकड़ों की तादाद में हमारी मस्जिद में ताउन करने के लिए लोग तैयार हैं। कोई 1100 देता है, कोई 2100 देता है, यहां तक के लोगों ने 51 हजार नहीं बल्कि 1-1 लाख रुपए भी चंदा एक मर्तबा में दे डाला है। लेकिन कभी अपने दिल में ये ना लाना कि मैं मस्जिद में चंदा देता हूं, मेरा पड़ोसी नहीं देता, मैं मस्जिद में चंदा देता हूं, मेरा गली वाला नहीं देता, मैं मस्जिद में चंदा देता हूं, मेरा जानने वाला नहीं देता। तो ये तो फायदे में है कि इसके पैसे बच जाते हैं, ये तो मुनाफे में है कि इसका माल बच जाता है। देखो तवज्जो रखो मेरी तरफ, ये अल्लाह का घर है। किसका घर है? अल्लाह का घर है। मस्जिद अल्लाह का घर है, पसंदीदा जगह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक जगह ऐसी है कि अल्लाह को हद से ज्यादा पसंद है और एक जगह ऐसी है कि अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, वो जगह कौन सी है जो अल्लाह को पसंद नहीं है? मेरे आका फरमाते हैं, वो बाजार है कि अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। सहाबा पूछते हैं, या
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी जगह है जो अल्लाह को बहुत पसंद है? तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह को रुए जमीन पर जो जगह बहुत पसंद है वो अल्लाह का घर मस्जिद है। क्या है? मस्जिद है। मस्जिद, ऊंचा बोलो, क्या है? मस्जिद है, मस्जिद। अब बताओ, मस्जिद में अल्लाह सबका पैसा नहीं लगवाएगा, अल्लाह की पसंदीदा जगह है। अब इस मस्जिद में उसका पैसा लगेगा, अल्लाह जिसको पसंद करता है। इस मस्जिद में उसका पैसा लगेगा, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है। इस मस्जिद में उसका पैसा लगेगा जिसने हलाल से कमाया होगा। इस मस्जिद में उसका पैसा लगेगा जो राह खुदा में नेक नियत के साथ देता होगा, और इस तरह देता होगा कि मैं जो दे रहा हूं अल्लाह इसका मुझे इनाम कयामत के दिन अता फरमाएगा। सबका पैसा मस्जिद में नहीं लगता। और मैं तुम्हें तारीख बता रहा हूं, एक वक्त था मक्का शरीफ में खाना काबा में एक औरत खुशबू लगाने के लिए आती थी। जिस तरह हम अगरबत्ती सुलगाते हैं अपने घरों में, दुकानों में, कारोबार में, वो उसी तरह की खुशबू खाना काबा में लगाने के लिए आती थी। एक दिन उस खुशबू से शोला जन हुआ, आग उठ गई, चंगारी उठ गई और खाना काबा में आग लग गई। और आग ऐसी लगी कि दीवारें बोसीदा हो गई, धुएं से गंदी हो गई, गिलाफे काबा भी बोसीदा हो गया, कुछ हिस्सा जल भी गया। तो तमाम लोगों ने मक्के के ऐलान किया कि खाना काबा की तामीर फिर से की जाएगी। वलीद बिन मुगीरा को वहां का सरपरस्त मुकर्रर कर दिया गया कि खाना काबा की तामीर जब होगी, देख रेख की जिम्मेदारी वलीद बिन मुगीरा की होगी। तो ऐलान हुआ, ऐ लोगों, मक्के में तो बड़े बड़े रईस रहते हैं, बड़े बड़े मालदार रहते हैं, बड़े बड़े सरमायादार रहते हैं, बहुत पैसा जमा हो जाएगा, खूबसूरत बिल्डिंग बनाई जाएगी, खाना काबा को खूबसूरत बनाया जाएगा, खूब बुलंद छत बनाई जाएगी, बेहतरीन कुमकुमे उस जमाने के हिसाब से लगाए जाएंगे, बेहतरीन गिलाफ चढ़ाया जाएगा। तो लोगों ने जब मशवरा किया तो ऐलान हुआ, ऐ लोगों, ये अल्लाह का घर है, शराबियों का पैसा इसमें ना लगाएंगे, जुहारियों का पैसा इसमें ना लगाएंगे, जानियों का पैसा इसमें ना लगाएंगे, चोरों और डाकुओं का पैसा इसमें ना लगाया जाएगा। ये अल्लाह का घर है, पाक पैसा लगाया जाएगा। जिसने हलाल से कमाया होगा, जिसने खून पसीने की कमाई से कमाया होगा, जिसने नेक नियत के साथ कमाया होगा, वो कमाई इस घर में लगाई जाएगी। क्योंकि ये अल्लाह का घर है। तो हमारे बुजुर्गों से दस्तूर चला आया है और अल्लाह ने हमको यही निजाम दिया है कि मस्जिद में सबका पैसा नहीं लगता है, उसका लगता है। अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, जिसके पैसे को पसंद फरमा लेता है। मस्जिद में अगर कोई शख्स लोटा भी लाकर रखता है तो अपनी मर्जी से नहीं रखता, बल्कि मेरा रब चाहता है उससे लोटा रखवा दिया जाए। मस्जिद में अगर कोई झाड़ू लाकर रखता है तो उसकी अपनी ताकत नहीं कि झाड़ू लाकर रख दे, बल्कि रब ने उसे तौफीक दी है कि वो अल्लाह के घर में सफाई का इंतजाम कर रहा है। क्या हमारी और आपकी इतनी ताकत है कि हम झाड़ू भी किसी को दे सकें, एक चम्मच भी किसी को दे सकें? हम तो किसी को एक सांस भी नहीं दे सकते, एक सांस भी नहीं दे सकते, अल्लाह ही की जानिब से है। तो मस्जिद में जिसका पैसा लगता है वो खुश हो जाए, खुशखबरी है उसके लिए, इसलिए कि अल्लाह ने उसके माल को पसंद फरमा लिया है। और मस्जिद में देने वाला तारीख गवाह है कि वो गरीब नहीं होता, बल्कि अल्लाह उसको उरूज अता फरमा देता है। क्या कोई गरीब हो गया मस्जिद में देने वाला? कोई गरीब हो गया मस्जिद में देने वाला? नहीं हुआ, इसलिए कि राह खुदा में तुम देते हो, अल्लाह तुम्हारी रोजी में बरकत नाजिल फरमा देता है। मैं तुमको बताऊं एक शख्स के बारे में, एक बादशाह था।